Sri Avatar Singh ji. He will be chairing the session. Sir, good Every evening. day he will be chairing. So, sir, welcome you, Avatar Singh, sir. And yesterday it was very wonderful session, and I have uploaded on the YouTube and also shared in the group. So you will see. And Avatar sir, your class will be always will seen by the many peoples. जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका ये वीडियोज रहेंगे सभी को. तो वट एवर वी आर delivering lecture, all the lectures are uploaded on the YouTube, so you can see. So welcome. Today is the autism sports, and you might be knowing in the India, I have started sports for autism. So before going, people are still joining. So in the introduction part, we'll introduce you the website also, the Indian Sports Federation of Autism. So whoever you have time, if you have time, then definitely you go through. गाँव छोड़े थे बोले सीपी The voice. गद्दोपुर खड़ा था Yeah, just mute yourself. यही से हमने सिंपल और 20 रुपया भाड़ा लगे थे जिसको राहुल जी. मैंने म्यूट कर दिया सर सभी को. आप भी म्यूट कर सर, अनम्यूट कर लीजिए. Sir, am I audible, sir? Yes, wait 1 minute. We'll start. The people are joining. Only 37 people has joined. So अभी हमारे 100 के आसपास पहुंचने वाला है. So थोड़ा सा जो जुड़े हुए हैं मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ एक वेबसाइट. So आप देखेंगे. So dear friends, Yes. and coaches and trainer, yeah, this is the website. If you have time and whenever you just go Autism Sports, otherwise you type www Indian Sports Federation of Autism, so you will see all the, and you also you will see in this video that officials and coaches also, you see the coaches, it is also in there. If you want to become the coach, so see in the here also the coaches are there. So, and then official also, I will show you the officials who is volunteer, and then the officials. Yeah, look at these were the officials who conducted the 13th National Championship for Autism. It was for skating, it was for cycling, it was for then badminton, swimming. So these were given the master training program. And afterwards, they have conducted the beautiful, well-organized this one. And also, there is in the volunteer section, you will see that there were many volunteers. See, volunteers were there, and they also supported to conducting the events. So in our website, you will find in the Bihar Para Sports Association, in the Bihar Special Olympics, as well Indian Sports Federation of Autism, and Indian Sports Federation of Cerebral Palsy. So you go through all the website and you find the resources are there. So just I am stopping this website and will welcome our resource person, Mr. Ashish Kumar Jaina ji. So please share your PPT, Rahul ji. Yeah, please start, Ashish Jaina ji. Hello. Good evening, sir. Good evening. Yeah, please start. Am I audible, sir?
Yes, yes, yes. If the any sound will be less or not coming, then we'll inform you. Okay. Please continue your सर lecture. मेरा 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 जो टॉपिक है ऑटिज्म स्पोर्ट्स। हम आज ऑटिज्म स्पोर्ट्स के पहले कुछ बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो पीपीटी है, इस पीपीटी के अंदर जो हमारा डेटा है, इस डेटा के स्पोर्ट्स रिगार्डिंग ऑटिज्म स्पोर्ट्स कुछ नहीं है इसमें। ऑटिज्म स्पोर्ट्स क्या है, ऑटिज्म बच्चा क्या है, उन लोगों का बिहेवियर कैसा सपोर्ट देना पड़ेगा, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, स्ट्रक्चर एक्टिविटी क्या होगा, स्किल कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, एवं एक साथ हम लोग कोचेस, टेक्निकल ऑफिशियल और एथलीट्स पेरेंट्स सब मिलके कैसे काम करेंगे, इस बारे में हमारा जो पीपीटी है ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट दिन ऑटिज्म स्पोर्ट्स रिगार्डिंग जो स्पोर्ट्स हम लोग बच्चों को कराएंगे उस उसके बारे में हम लोग बताएंगे। आज का पीपीटी में हमारा यही है, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, स्ट्रक्चर एक्टिविटीज एंड स्किल डेवलपमेंट एंड टुगेदर वी कैन। यही हमारा आज का पीपीटी का जो कंटेंट है। हम शुरू में एक चीज बोलना चाहता हूँ, जे एक वीडियो हम पहले दिखाएंगे Ashish हमारा। ji, many coaches are from South also, so we'll mix the English and Hindi. ओके ओके सर, ओके सर। Okay, we will टुडे be in between. Okay, yeah. यस यस सर, फर्स्ट आई एम सीइंग अ वीडियो। गुड राहुल इवनिंग जी सर, प्लीज। मैं अनिल कुमार सानी समस्तीपुर। प्लीज, गुड इवनिंग। राहुल जी आप वीडियो को पहले दिखाइए एक बार। एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे लोगों का एक वर्ल्ड योगा डे का एक वीडियो है। यहाँ पे जितना सारा बच्चा है सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डाउन सिंड्रोम इसके अंदर है कुछ। प्लीज शो द वीडियो राहुल जी। यस सर, 1 मिनट। Mr. Jaina, am I audible? Yes, यस sir. यस Yes. सर, गुड इवनिंग Mr. सर। Jaina, there are a few community coaches, you can say, from USA also. I'll be happy if you can, in between, speak little bit of English as well, so that they all Yes, can sir. listen and get benefit So from your. we welcome our coaches who are from very far USA. We welcome you, and we happy with our Indian trainer and coaches. So we together will listen and see the today programs from Mr. Ashish Jaina. We welcome. And Avatar sir also, in between, if there is a need of any clarification or any suggestions, please sum up with your suggestion and your remarks also. Thank you, Dr. Shivaji. यस सर। सर हेलो। Yes, Ashish ji. सर And video, सर you also can share your video through your laptop also if there is any problem. Because I have also this is not video. This video has been given by me. मेरा स्लाइड के अंदर ही है। Your slides. Have you shared the slide to Rahul ji? Do you have slides? No. You can also share it. Rahul ji, I have also slide. In slide, it was only slides. There was no video. आशीष सर, हेलो हेलो राहुल जी, राहुल जी। Okay, Rahul ji, I have shared his PPT also. Please have a look.
just recently I have shared his PPT also. Okay, I will go. I can also share. So there was no any video in the slide, it was the PDF, Ashish ji. You can share from your side also. Wait for 2 minutes सर, डाउनलोड हो रहा है सर. जब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर कुछ पॉइंट्स पर. Okay, sir. Yes. Okay. Now I'm telling in understanding autism spectrum disorder, sir. First, our coaches, you understood the spectrum, autism spectrum disorder. What is autism spectrum disorder? Autism spectrum disorder, neurodevelopmental disorder, condition affecting social communication, social interaction, repetitive behavior, and sensory processing and learning style. मेन जो चीज में इन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेफिसिट, सोशल इंटरेक्शन के प्रॉब्लम है, और बिहेवियर, रिपीटेटिव बिहेवियर का प्रॉब्लम, और कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग इशू है इन लोगों को. शुरू में हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन करना है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कौन है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कौन है. तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे लोगों को हम लोग देख के हम समझ पड़ेंगे जो इन लोगों का, कुछ लोग का स्पीच है, कुछ लोगों का स्पीच नहीं है, कुछ लोग वर्बल, कुछ नॉन वर्बल, बट इन लोगों का जो वर्बल है उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, नॉन वर्बल उनका भी कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. एज ए रियल प्रोफेशनल हम लोग जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएंगे. सोशल इंटरेक्शन इसका वेरी पुअर है, तो इनको सोशल इंटरेक्शन और बढ़ाना है. बिहेवियर इशू है, रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही काम बार बार ये लोग करते हैं. इनका सेंसरी प्रोसेसिंग में बहुत सारा दिक्कत है, लाइक इन लोग ज्यादा साउंड, ज्यादा गैदरिंग, ज्यादा लाइट प्रॉब्लम होते हैं इनका, और लर्निंग स्टाइल इनका थोड़ा डिफरेंट है. Basically, autism spectrum disorder is a spectrum because every individual has different strength, challenges and support needs. Spectrum हम लोग क्यों बोलेंगे? Autism spectrum disorder, spectrum means हमारा जो चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म है इनका डिफरेंशिएट अलग है, एक बच्चा से और एक बच्चा अलग है. एवरी इंडिविजुअल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर डिफरेंट, उसका स्ट्रेंथ डिफरेंट, उसका चैलेंजेस डिफरेंट, और उसका जो सपोर्ट नीड्स है वो भी डिफरेंट है. तो यही है हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन. एंड एक्चुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चा को बिफोर 3 इयर्स हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते. ये इनविजिबल डिसेबिलिटी है, हम लोग देख के इनको समझ नहीं पाते. इनको साथ कुछ टाइम हम लोग जब स्पेंड करेंगे उसके बाद धीरे धीरे स्पेक्ट्रम, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा है उनको हम लोग समझ पाते हैं, उनका कम्युनिकेशन का, बिहेवियरल का, सोशल इंटरेक्शन का, एंड बहुत सारा रिपीटेटिव बिहेवियर को देख के हम लोग पता चलता है कि ये बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. Ashish ji, your slide has uploaded on the screen. Please have a look. And where is the video? Please tell us. Second slide. Yes, second slide. Rahul ji. राहुल जी, इंटरनेशनल योगा डे. Second, yes, this one. इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, देखिए वहाँ पे एक वीडियो है. Next slide, please, Rahul ji. Please change the slide. Yes, where is the video? Yes, Yeah. this one. 9, 10, reverse, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
খুব সুন্দর এবার প্রত্যেকে একটু শান্ত Touch your eyes and touch your head. Big clap. opposite Reverse forward, reverse. reverse 1 1, 2 3 open your eyes. Rub your hand. Rub your hand. Thank you. Hello. Yes, please continue. सर इस वीडियो हम क्यों रखा है, शुरू में हम एक चीज बताऊंगी जे हम बोल रहे हैं जे इसमें 100 स्टूडेंट है, इसमें 80% स्टूडेंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुछ बच्चा है डाउन सिंड्रोम, कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और 2-3 बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चा को इतना साउंड, इतना प्रोफेशन के अंदर, इतना एनवायरमेंट के खुला एनवायरमेंट के अंदर हम लोग कभी रख नहीं पाते, उनका बहुत सारा बिहेवियर इश्यू होता है। तो यहाँ पे एक योगा डे में वो लोग सुबह 5 बजे से दिन 9 तक मॉर्निंग 9 o'clock तक वो लोग एक जगह में बैठ के पूरा जो प्रोग्राम है, जितना सारा प्रोटोकॉल योगा का है, सब वो लोग कुछ किया है, कोई इनका बिहेवियर इश्यू नहीं हुआ। एक चीज एक दिन में नहीं हुआ। इन जो यहाँ पे जो बच्चा लोग योगा कर रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यहाँ पे बच्चा का उम्र है 8 years to 25 years तक बच्चे यहाँ पे हैं, जो बच्चा है यहाँ पे। तो इन लोगों को हम लोग इनका जो करिकुलम है स्पोर्ट्स करिकुलम में हम लोग एक एक्टिविटी रख सकते हैं एवरी डे 45 मिनट्स योगा और मेडिटेशन के लिए। तो इस योगा और मेडिटेशन क्या होता है, इनका फिजिकल हेल्थ में इसका जो इम्यूनिटी एनहांस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, स्ट्रेंथ एवं ओवरऑल हेल्थ इसका डेवलप करते हैं। इन लोग का बहुत अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको भी अच्छा कर सकता है ये योगा और मेडिटेशन। स्पोर्ट्स, योगा एक स्पोर्ट्स है, इसके साथ हम लोग काम करेंगे और स्पेक्ट्रम जो है उनके साथ उनका जो इम्यूनिटी पावर, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वो थोड़ा कम होगा। इसको कम्युनिटी स्किल भी इसका बढ़ेगा। इसके साथ इसका जो डिजीज है, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन के ज्यादा इम्यूनिटी पावर नहीं है, बट इसका डिजीज को इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको स्पेस दे सकते हैं। और ग्लोबली योगा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इंडिया एक ऐसा देश है ग्लोबली काम कर रहा है योगा के ऊपर। तो हमारा इधर जो कोच है, कोच को हम एक बोल सकता हूँ, जो आप लोग, आपका जो बच्चा है स्कूल में, आपका जो कम्युनिटी में, आपका जो इंस्टीट्यूट में, जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, सब जगह में जो जितना सारा स्पेक्ट्रम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा है, उनको आप लोग करिकुलम में एवरी डे 30 to 45 मिनट मेडिटेशन, योगा, ये गेम रखिएगा। करिकुलम में ये चीज रखेंगे तो हमारा बच्चा और आगे बढ़ेगा, उनका बिहेवियर इश्यू कम होगा, उनका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सारा स्ट्रेस है उनका, वो भी कम हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा और योगासन के माध्यम से उन लोगों का बहुत सारा फिजिकल हेल्थ भी डेवलप होगा। तो इसलिए हम शुरू में ही एक वीडियो दिखाया आप लोगों को, जे आप लोग एवरी डे जब आपका फिजिकल एक्टिविटी व स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप लोग स्टार्ट करेंगे, आप लोग शुरू में हम लोग वार्म अप करते हैं, आप लोग वार्म अप कर पहले आपको एक मेडिटेशन, एक योगासन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग डिफरेंट एनवायरमेंट से, डिफरेंट होम से वो आते हैं और उनका इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। और
आप जब उसका कोई इंस्टीट्यूट में, कोई ग्राउंड में, कोई सेंटर में आपको उसके साथ काम करेंगे, हमारा स्पेक्ट्रम जो बच्चे हैं उनके साथ, तो शुरू में आप इस करिकुलम के हेल्प माध्यम से आप उसको कुछ इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और बाकी उसके बाद धीरे धीरे वो जब इन्वॉल्व हो जाएगा एक्टिविटी में, धीरे धीरे आपका जो मेन मोटो है उसका फिजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना, डिफरेंट डिफरेंट गेम लाइक एथलेटिक्स, लाइक फुटबॉल, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्केटिंग, जो आप लोग करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हम ये हमें शुरू किया था, जे इनका बहुत सारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम है, बिहेवियर इनका रिपीटेटिव बिहेवियर ज्यादा है, सेंसरी प्रोसेसिंग है, बट इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम लोग को पता चलेगा ये बच्चा ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। पहले इनको कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इन लोगों के साथ जो काम करेंगे, एक दिन नहीं, पूरा दिन, पूरा ईयर, पूरा मंथ हमको काम करना पड़ेगा। तो पहले हमारा जो बच्चा है, हमारा जो टारगेट ग्रुप है जिनके साथ हम लोग काम करेंगे, हमारा स्पेशल नीड एथलीट जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनका बिहेवियर को हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ काम करना है। उनका मम्मी पापा नहीं रहेगा, एज ए कोच, एज ए कम्युनिटी कोच हम लोगों को उनका जो बिहेवियर को हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिहेवियर हिसाब से हमको उसके लिए कोई गेम हमको सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के बाद उसको कंपटीशन में लेके जाना है। ग्राउंड लेवल में हमको काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे कम्युनिटी कोचेस जो हम लोग है कम्युनिटी से, वो लोग जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाएगा वो स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल से जाएगा वो नेशनल लेवल में, नेशनल लेवल से जाएगा इंटरनेशनल लेवल में। तो इन बच्चों के साथ काम करेंगे, पहले इनको जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको समझना पड़ेगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसका सोशल कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये इसका आई कांटेक्ट खूब कम है, लो लिमिटेड आई कांटेक्ट है, डिफिकल्टी मेकिंग फ्रेंड्स, ये लोग ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, ये इसका एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम लोग सबके साथ मिलते हैं, उनका सोशल स्किल बहुत अच्छा है, बट हमारा स्पेक्ट्रम जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एथलीट्स है, उनका आई कांटेक्ट कम है, उनका फ्रेंडशिप वो लोग नहीं बना सकते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसा ग्रुप के साथ हम लोग जितना सारा काम करेंगे, उनका फ्रेंडशिप और बढ़ेगा। तो इनका डिफिकल्टी, इन लोग इजी ऐसा फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, उसका सेम एज ग्रुप है, होमोजेनियस ग्रुप, उनके साथ वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाते। वो लोग ज्यादा उनका ह्यूमन बीइंग से, नॉन ह्यूमन बीइंग से ज्यादा वो लोग खेलते हैं। डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, हमारा जो इमोशन, जैसे हम एक इवेंट में उनके साथ क्या हम चाहते हैं एज ए कोच है, वो समझ नहीं पाते। हम उनके साथ जब काम करते हैं, जो हम बोल रहे हैं ये तुमको ऐसे एक्टिविटी करना पड़ेगा, ऐसे तुमको काम करना पड़ेगा, वो समझ नहीं पाते। उसका जो कोच जो चाह रहा है, कोच का पसंद नहीं है, वो समझ नहीं पाता है, कोच क्या बोल रहे हैं, और उसके साथ जो ट्रेनर है वो क्या बोल रहा है, उसको समझ नहीं पाते हैं वो लोग। उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत सारा प्रॉब्लम, और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में, और जैसे आप गुस्सा हो गया है, जब उसको गुस्सा दिखाएंगे वो आपके साथ काम करने जाएंगे। गुस्सा हो गया तो हम वो, जैसे गुस्सा है तो कोच का बात सुनना पड़ेगा, कोच एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है बार बार, आप उसको सुन के काम करना पड़ेगा, वो समझ नहीं पाते हैं। उसको एक इंस्ट्रक्शन एक बार नहीं देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, उसका सामने जाके बोलना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो कोई काम हमारा स्पेक्ट्रम जो एथलीट है वो कर पाते हैं। उसका लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन है, हम लोग क्या बोलेंगे, जो उसका काम है वो काम करके एक जगह में बैठ जाते हैं, उसके साथ जैसे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, जैसे हम उसके लिए 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर कोई ऐसा रनिंग इवेंट रखा है, वो रन करके वो एक जगह में बैठ जाएगा, वो सबके साथ नहीं मिलते हैं। ग्रुप में फुटबॉल ऐसे कोई गेम, क्रिकेट कोई गेम हो रहा है, और ग्रुप में जो गेम होता है, गेम में वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो खुद को उस ग्रुप से अलग रखते हैं, वो सेग्रीगेशन हो जाते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन भी इसका बहुत सारा कम है। एक होमोजेनियस ग्रुप में क्या होता है, सब सबके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक साथ रहते हैं, ऐसा बहुत सारे ग्रुप गेम में। बट हमारा स्पेक्ट्रम जो एथलीट्स है वो सबके साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं करते। उसका बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिपीटेटिव मूवमेंट, वो लोग एक ही काम को बार बार करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं, रिपीटेटिव कोई चीज, जैसे आप उसको बोल रहे हैं ये फुटबॉल को ठीक से किक करो, वो फुटबॉल को किक नहीं करेंगे,
फुटबॉल को बार बार किक करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं कि तुम बैडमिंटन रैकेट से शटल को स्मैश करो, वो मैच नहीं करेंगे, वो शटल को कॉक को फेंक देंगे, रैकेट को फेंक देंगे। तो ये एथलीट्स जो है, इनका जो रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही काम को बार बार रिलेट करते हैं। इसका रेस्ट्रिक्टेड जो इंटरेस्टेड है, ये हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। इसको शुरू में ये लोग क्या करते हैं, जे उसको सेटअप हो जाता है कि यही हमको करना है, जो स्ट्रक्चर यही काम है, इसके बाहर जो और कुछ काम है वो नहीं करेंगे। जैसे आप उसको रिस्ट्रिक्शन इंटरेस्ट क्या है, जैसे आप एवरीडे आप उसको योगा क्लास करते हैं, बट एवरीडे गेम खत्म होने के बाद ऐसे कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, व नेशनल एंथम करते हैं। एक दिन आप नेशनल एंथम रुक दीजिए, एक दिन आप योगा क्लास रुक दीजिए, वो शुरू में ही बोलेंगे योगा क्लास क्यों नहीं हो रहा है, योगा क्लास क्यों नहीं हो रहा है, नेशनल एंथम क्यों नहीं हो रहा है। जब उसका गेम खत्म हो जाएगा, इवेंट खत्म हो जाएगा, उस टाइम एवरीडे होता है नेशनल एंथम, तो क्यों नहीं हो रहा है, नेशनल एंथम नहीं हुआ, वो उसको लेकर घर तक जाते हैं, क्यों सर नहीं किया, क्यों नहीं सर किया, घर में जाके बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाते हैं। प्लीज लिटिल फास्ट, और थोड़ा सा ओके, क्लासिफिकेशन वगैरह पर हम लोग बात कर लेंगे। या अरे स्पीक लिटिल इंग्लिश आल्सो, बिकॉज द our some guest are from USA also, so they can, and South also, so they can डिले understand. ओके 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 ओके। एंड कम्युनिकेशन स्किल में कुछ दिक्कत है, लाइक इन लोग स्पीच डिले हैं, उन लोगों का हम शुरू में ही बोला, स्पीच एंड कम्युनिकेशन एक्चुअली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर 3 एरिया में प्रॉब्लम है, एक सोशल कम्युनिकेशन, एक स्पीच एंड कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है। कम्युनिकेशन में इनका स्पीच डिले है, कुछ का वर्बल कुछ नॉन वर्बल है, इक्वलिया इसका डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग इमोशंस है, और सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सेंसिटिविटी टू नॉइज। लाइक हमारा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एथलीट है, जैसे बहुत ग्राउंड में, बहुत स्टेडियम में बहुत सारा पॉपुलेशन, बहुत गैदरिंग, तो इन गैदरिंग को देख के उनका बिहेवियर इशू हो जाता है। इतना साउंड वो लोग नहीं लेते, कुछ लोग होता है हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, थोड़ा साउंड में इनका दिक्कत होता है, और ज्यादा साउंड में भी दिक्कत होता है। कोई दिक्कत होता है बहुत सारा पॉपुलेशन देख के, वो ग्राउंड में इतना सारा एनवायरमेंट, और वो जब जहाँ पे प्रैक्टिस करता है, जैसे उसको स्कूल में, जैसे उसका घर में, जैसे उसका कम्युनिटी जो सेंटर है, वहाँ पे इतना गैदरिंग नहीं है, इतना एनवायरमेंट इतना अच्छा है, तो यहाँ पे जाके वो कोप नहीं कर पाते हैं। यही एक सेंसरी प्रॉब्लम है, जो साउंड नहीं ले पाते, कान में ढक के रखते हैं कभी, है ज्यादा क्राउड में वो पसंद नहीं करते हैं। उसका पसंद का लोग वहां पे रहेंगे तो वो काम करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, उसका पसंद का जो कोचेस है बा उसके साथ जो लोग काम करते हैं, वो लोग नहीं रहेगा तो वो उस टाइम परफॉर्म नहीं करते। यही दिक्कत है हमारा स्पेक्ट्रम बच्चा का, यही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप लोग जब इनके साथ काम करोगे तो आप लोग देखेंगे कि इसका सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिकेशन एंड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। बच्चा को इस कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ेगा, इसके समझ के ही आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है, बट हम इस डेटा को यहाँ पर नहीं बताएंगे। एक चीज तो Next हम slide, आप लोग next को बोल slide, सकते हैं, slide. अभी Ashish ji, स्लाइड please चेंज see the slide also. Your slides also. Please change, forward the yes, slide. change the slide. Yes, sir, change the slide. Yes. Yeah. सर यहाँ Again, पे you have to change the स्टैटिस्टिकल डेटा slide. हम दिया Yeah. है, Yes, change. जस्ट Yes. थोड़ा सर 2000 से 2026 तक इसके अंदर डेटा है। इस डेटा में कुछ स्पोर्ट्स वाइज पार्टिसिपेशन है, कुछ ग्रोथ एनुअल पार्टिसिपेशन है, और कुछ की हाइलाइट्स है इसमें। And जैसे हमारा जितना सारा स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, इसके अंदर कितना हमारा स्पोर्ट्स है, एनुअल पार्टिसिपेशन कितना है, नेशनल चैंपियनशिप कितना होता है, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन कितना है, इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना है, इस पे कुछ डेटा है इसमें। और ग्रोथ एनुअल पार्टिसिपेशन लाइक 2000 से 2005 के अंदर कितना ग्रोथ हुआ था, 2025-26 के अंदर कितना ग्रोथ है। अभी 25,000 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो लोग ऑटिज्म है। यहाँ पे कुछ एथलीट है, जो एथलीट इसके अंदर कुछ फुटबॉल प्लेयर है, स्विमिंग है, बास्केटबॉल, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, योगा और अदर स्पोर्ट्स का कुछ डेटा हम यहाँ पे दिया है। और ईयर वाइज जो पार्टिसिपेशन एंड चैंपियनशिप हुआ है वो भी डेटा यहाँ पे है। इस स्लाइड को और अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए राहुल जी।
ऑटिज्म का जो प्रिवेलेंस है, हम जब 2000 में देखा है, ये 2000 में इंडिया में 10,000 बच्चा जब पैदा होते थे, उस टाइम ऑटिज्म बच्चा एक होते थे, 10,000 के अंदर एक होते थे। 2026 में जो प्रिवेलेंस है, जे अभी 38 और 40 के अंदर एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा अभी जन्म ले रहे हैं। धीरे धीरे इस स्पेक्ट्रम हमारा देश और ग्लोबली और बढ़ रहे हैं। इसमें एक रेशियो है, शुरू में 4:1 था, 4 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा और उसके मेल और एक फीमेल था। 4:1 मीन्स उसका रेशियो था 4 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेल और 1 फीमेल। अभी उसका थोड़ा कम हो गया, 3 मेल और एक स्पेक्ट्रम जो है फीमेल एथलीट को हम लोग देखते हैं। और प्रिवेलेंस रेट क्या है, 1998 में 1.7% था और 2024 में 113.6 जो परसेंटेज अभी बढ़ गया है, ग्रोथ ऑफ एस्टिमेट प्रिवेलेंस। स्टेट वाइज डेटा क्या है, यूपी में सबसे ज्यादा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम व्यक्ति रहते हैं, 29,383, और सबसे कम दिखा रहे दिल्ली 7,274, और बाकी यहाँ पे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये भी 2011 का सेंसस रिपोर्ट है। ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म यूपी में, कम ज्यादा दिल्ली में। इसमें कुछ डेटा हम रखा है और कोचेस के लिए, उन लोगों का इस इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर में काम में लगेंगे। नेक्स्ट, ऑटिज्म जो एथलीट है, स्पेक्ट्रम जो एथलीट है, उनका स्ट्रेंथ क्या है। स्लाइड चेंज कर दीजिए राहुल जी। राहुल जी, कुछ स्ट्रेंथ है हमारा स्पेक्ट्रम एथलीट, सम स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स विद ऑटिज्म, लाइक उसका स्ट्रेंथ एक्सीलेंट मेमोरी। ये एक्सीलेंट मेमोरी स्पोर्ट्स में क्या एडवांटेज है, वो लोग स्पोर्ट्स में जो रूटीन है, स्पोर्ट्स में जो सीक्वेंस है, वो क्विकली वो लर्न कर लेते हैं। जैसे हम एक बैडमिंटन के बारे में बोल रहे हैं, उसका मेमोरी अच्छा है। हम बैडमिंटन शुरू क्या करते हैं, शुरू में हम लोग रैकेट को कैसे ग्रिप करना है, हैंडल कैसे पकड़ना है, ये हम सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग हैंड फीडिंग करते हैं बैलून से, और बैलून के बाद हम लोग करते हैं उसका शटल कॉक से। उसके बाद हम लोग उसको फोरहैंड, बैकहैंड, स्मैश, ऐसे जो स्टेप है बैडमिंटन का, हम लोग धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारा जो स्पेक्ट्रम एथलीट्स है, प्लेयर है ऑटिज्म, उन लोग का एक्सीलेंट मेमोरी, इसलिए वो लोग जो चीज सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप, सिक्वेंशियली जो चीज सीखते हैं उसको कभी भूलते नहीं है। वो सिस्टमेटिकली, सिक्वेंशियली वो चीज को धीरे धीरे कोप कर पाते हैं। तो एक उसका एडवांटेज है। तो हमारा जो यहाँ पे कोच है, हम कोच को बोलेंगे, उनका जो एक्सीलेंट मेमोरी है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। आप उसको ऐसे ही एक विजुअल कोई चार्ट के माध्यम से आप उसका कुछ पिक्चर से उसको कोई स्किल आप सब सिखाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, ऐसे ही धीरे धीरे उसको कुछ स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब बैडमिंटन हो, जब स्केटिंग हो, जब साइकिलिंग हो, जब एथलेटिक्स हो, कोई इवेंट में आप उसको धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल इसको सिखाएंगे, तो वो लोग अच्छा से याद करके उसको कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, उसका अटेंशन ज्यादा है, उसको जो स्किल है, स्किल में बहुत अच्छा होगा उसका जो अटेंशन है। जैसे स्विमिंग में उसका अटेंशन ज्यादा चाहिए, स्विमिंग गेम में। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में कोई रिले होगा, कोई रनिंग इवेंट होगा, अटेंशन ज्यादा देना पड़ेगा। बैडमिंटन में उसको अटेंशन देना पड़ेगा, हर टाइम उसको अटेंशन देना पड़ेगा। इस कुछ गेम में इसको ज्यादा अटेंशन चाहिए। और इन लोग ऑनेस्ट ज्यादा है, इसका जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेयर प्ले, ये लोग कभी किसी के साथ बिट्रे नहीं करते। स्पेशल ओलंपिक में ऐसे कुछ कोचेस बोलते हैं, जे तुम धीरे भागो,
तुमको एबिलिटी में लो एबिलिटी में जाना पड़ेगा, तुम ज्यादा फास्ट नहीं रन करना है, थोड़ा धीरे रन करो, ज्यादा दूर मत छोड़ो, थोड़ा दूर उसको फेंको, ऐसे बोलते थे कुछ कोचेस। फेयर प्ले जो होता है, कोचेस फेयर प्ले में हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा के साथ ऐसा बोलिएगा तो आपका बात नहीं सुनेंगे। उसका जितना सारा लेवल है, जितना सारा उसका एक्टिविटी सीखा है, वो इसी माध्यम से वही काम करेंगे। आपका बात वो नहीं सुनेंगे। वो खूब ऑनेस्ट होता है, ये ऐसे करो ऐसे नहीं करो, वो लोग नहीं सुनते हैं। उसका जो काम वो सीखा है कोचेस के पास, वो ऐसे ही करते हैं। उसका जब इवेंट आता है ऐसे, वो लोग बहुत सारा ऑनेस्ट है, कभी उसका ऑनेस्टी वो लोग नहीं कम होने देते हैं। हर टाइम उसका जो सेंस है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेयर प्ले उसका ब्रेन में घुस जाता है। एक चीज में जो कर लेंगे वही चीज बार बार वो करते हैं। कभी वो ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी नहीं होते। हर टाइम कोच आईडी बच्चों को बोल सकते हैं, बट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चों को कुछ जब बोलेंगे वो बात नहीं सुनेगा हमारा बच्चा। हाई फोकस उनका एक स्ट्रेंथ है, बेटर कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। एक चीज जब वो शुरू कर लेते हैं ना, धीरे 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 वो आगे बढ़ते हैं। उसका बेटर कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी और बढ़ जाते हैं, कभी कम नहीं होते हैं। एक चीज शुरू में आप स्केटिंग खूब हाई रिस्क गेम है, साइकिलिंग एक बार स्टार्ट कर दीजिए, धीरे 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 वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका फोकस ज्यादा हाई है। पैटर्न रिकॉग्निशन, एक बार कुछ पैटर्न को वो समझ पाएंगे तो धीरे 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 वो कोई चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। उसको एक पैटर्न पहले अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से उसको सिखाना है। ये एक काम ऐसे करना है, एक काम ऐसे करना है। वो एक बार उस पैटर्न को देख लेंगे, क्योंकि वो लोग पैटर्न को ज्यादा रिकॉग्निशन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए फ्लैश कार्ड बनाते हैं, गेम के पहले पिक्चर कर देते हैं। ये देखो, इस पैटर्न को, इस गेम को ऐसे करना है, इस गेम को ऐसे करना है, इस पैटर्न को पहले देख लो। हम लोग उसके पिक्चर से देख सकते हैं, कोई वीडियो से, कोई हम लोग मोबाइल से कोई गेम, ऐसा कोई पैटर्न को हम दिखाएंगे। दिखाने के बाद उसको हम उस गेम को इंट्रोड्यूस करेंगे। धीरे 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 उसका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा और उसका एक्टिविटी इंप्रूव होगा। रूल फॉलोइंग एक एडवांटेज है हमारा बच्चा का, जिसमें इन लोग को डिसिप्लिन होता है, स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर के बिना ये लोग काम नहीं करते, डिसिप्लिन होता है। जैसे शुरू में किया है, लास्ट तक जो जो स्किल लोग किया है सब काम करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ को स्किप करके वो गेम करते थे, बट ये लोग रूल को फॉलो करते हैं, रूल को ब्रेक नहीं करते, तोड़ते नहीं है। ये कुछ सीखा तो उसको रूल के हिसाब से वो लोग करेंगे। तो इनके साथ अब हम काम करेंगे, इनका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करके हमारा जो इवेंट करना है, जितना सारा एक्टिविटीज करना होगा, जितना सारा गेम उसको सिखाएंगे, उसको अच्छे से हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। चेंज चेंज राहुल जी, चेंज राहुल जी। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, कुछ प्लेयर्स इंडिया का है, कुछ प्लेयर्स ग्लोबली है। यहाँ पे हम कुछ स्पेक्ट्रम जो है, जो एथलीट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, उसका कुछ यहाँ पे फेमस जो प्लेयर है उनका कुछ डेटा हम यहाँ पे दिया है। आप लोग बाद में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चा जो ग्लोबली और इंडिया का फेमस जो प्लेयर, उनका यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यहाँ पे है। यहाँ पे आदित्य शर्मा, कृष्णा नगर, निधि रावत, सीमा राव, अभिनव देश पांडे, मनवीराज खोसला, ये है हमारा इंडिया का फेमस ऑटिज्म एथलीट जो डिफरेंट डिफरेंट गेम में, जैसे शुरू में हम जिसका नाम बोल रहे हैं, मनोवीराज खोसला, वो एक स्विमिंग प्लेयर है। वो अर्जुन एवडी है, मल्टीपल गोल्ड मेडलिस्ट एट स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन स्विमिंग। ये भी एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका है। आदित्य शर्मा, ये एथलेटिक्स है, गोल्ड मेडलिस्ट। और कृष्णा नगर, ये भी एक स्विमिंग, ये भी गोल्ड मेडल मिला है। और सीमा राव, ये भी एक एथलीट है, गोल्ड मेडल इन 100 मीटर, 200 मीटर इन स्पेशल ओलंपिक, एशियन गेम्स मेडलिस्ट। तो इसमें बहुत सारा इंडियन प्लेयर है जो ऑटिज्म है। इसमें
कुछ फेमस प्लेयर्स है जो ग्लोबली है। माइकल फिल यूएस का स्विमिंग प्लेयर है, ये भी इसका ऑटिज्म था, ठीक है। और यहाँ पे और ज्यादा प्लेयर है, एंटोनियो फंटीन जो इटाली का स्विमिंग प्लेयर है, वो भी ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ था एट एज 2 में। 2 साल जब उसका उम्र था उस टाइम ऑटिज्म डायग्नोसिस हुआ था। तो इस क्विज में कुछ प्लेयर का हम डिटेल्स दिया है, जहाँ पे जो प्लेयर है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, आप लोग देख लीजिएगा। चेंज राहुल जी, चेंज द स्लाइड। इसको चेंज कर दीजिए, वीडियो नहीं दिखाना है। सर इस वीडियो देख सकते हैं आप सर? शिवाजी सर, ऑलरेडी वीडियो दिखा दिए हैं ना, नेक्स्ट कीजिए, टाइम कम है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 सर। कुछ बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म। ऑटिज्म बच्चा का स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या है? हमारा जो कोच है यहाँ पे, आप लोग पहले थोड़ा कुछ बेनिफिट के बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑटिज्म, जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म उनका स्पोर्ट्स में, लाइक उनका फिजिकल डेवलपमेंट में, उसका सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो है उसका, बेटर स्लीप, रिड्यूस एंजाइटी, इंप्रूव मोटर स्किल्स, इंक्रीज इंडिपेंडेंस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजिकल बेनिफिट्स क्या है ना? फिटनेस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल। ये हम लोग जानते ही है, जो फिजिकल कोई स्पेक्ट्रम हो और नॉन स्पेक्ट्रम हो, न्यूरोटिपिकल बच्चों, सबका ही ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है थ्रू स्पोर्ट्स के। जैसे फिटनेस बढ़ेगा, बैलेंस उसका भी बहुत सारे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ते हैं, मोटर स्किल में भी वो बहुत इंप्रूव करते हैं। सोशल, क्योंकि इन लोगों का सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर है, तो इसलिए इनका सोशल इंटरेक्शन और बढ़ते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। क्योंकि एक इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम जो है, घर में रहते हैं, सबके साथ मिलते नहीं है, स्कूल में हर टाइम एकेडमिक करिकुलम के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इनको स्पोर्ट्स माध्यम से इनका बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन इनका डेवलप करना है। लाइक फ्रेंडशिप बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल, लाइक एक फ्रेंड्स के साथ, लाइक ग्रुप गेम हम लोग, जैसे हैंडबॉल, लाइक बास्केटबॉल, लाइक फुटबॉल, लाइक रिले, इसमें क्या होता है, एक फ्रेंडशिप बनते हैं इन स्पेक्ट्रम बच्चे के साथ। तो थ्रू स्पोर्ट्स हम लोग क्या डेवलप करते हैं, इनका फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, कम्युनिकेशन और बढ़ते हैं, टीम वर्क, एक साथ काम करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इन लोग किसी के साथ नहीं मिलते हैं, किसी के साथ नहीं बातचीत करते हैं, खुद को सबसे अलग रखते हैं, सेग्रीगेशन कर, आइसोलेशन करके रखते हैं, क्योंकि इनका ह्यूमन बीइंग के ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। ये लोग नॉन ह्यूमन बीइंग, लाइक कुछ चीज के ऊपर खेलते हैं, एक खुद का एक वर्ल्ड बना लेते हैं जिसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो थ्रू स्पोर्ट्स हम लोग क्या करते हैं, सोशल जो स्किल इसको डेवलप कर सकते हैं, फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क एंड सोशल स्किल्स। इमोशनल रेगुलेशन और बढ़ते हैं थ्रू स्पोर्ट्स के माध्यम से, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। जब ये बच्चा एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसको अवार्ड मिलते हैं, उनका धीरे 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 कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स लोग भी कॉन्फिडेंस मिलता है उनका भी, और सोसाइटी में इमेज बढ़ते हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ जाते हैं, बच्चे को सब लोग पसंद भी करते हैं, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन होता है। इन हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे का बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो स्पोर्ट्स के माध्यम से धीरे 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 स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये रिड्यूस हो जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन हम शुरू में बोला, हम लोग कहाँ क्या कैसे इमोशन को दिखाएंगे, कहाँ कंट्रोल करना है, हम लोग जानते हैं, बट हमारा स्पेक्ट्रम बच्चा इसको इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स एक इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स एक कंपोनेंट्स है, जिसको यूज करके हम लोग इसके इमोशनल रेगुलेशन को और बेहतर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। पॉजिटिव मूड, इनका मूड भी हर टाइम एक टाइम नहीं रहते हैं। जैसे आप जो लोग काम कर रहे हैं ऑटिज्म के साथ, जैसे जो नोन है उनके साथ काम करते हैं, अननोन लोग आ जाएगा ना, उनके साथ कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों? क्यों ऐसे होता है? उसका जनरलाइजेशन जो स्किल है उसका डेवलप नहीं कर, क्योंकि इसका मूड अलग है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में वो कोप नहीं कर पाते। उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते हम लोग इसका जो पॉजिटिव मूड है, इमोशनल रेगुलेशन है, स्ट्रेस रिडक्शन है, कॉन्फिडेंस है, इसको धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो जो आप लोग जो काम करेंगे इन लोगों के साथ, इनका इमोशनल
जो इंटरेक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, पॉजिटिव मूड, स्ट्रेस रिडक्शन, कॉन्फिडेंस, इनको बढ़ाना है। इनको एक सिस्टमेटिक वे में इनको सब काम करना है। जितना सारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, जितना सारा इमोशनल रेगुलेशन अच्छा होगा, पॉजिटिव मूड होगा, इतना उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। इनका बिहेवियर हर टाइम एक नहीं रहते, मूड धीरे धीरे फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसको बिहेवियर, इसका मूड देख के आपको इंट्रोड्यूस करना है। कोई काम, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई स्किल जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे, करते हैं आप लोग, इसको फोर्सफुली कभी नहीं करना है। इसको ऑप्शन चॉइस देना पड़ता है। जे आज तुमको तीनों गेम का कौन सा गेम करना है, आज बैडमिंटन करना है, आज एथलेटिक्स करना है, आज स्केटिंग करना है। शुरू में आपको धीरे धीरे इसको ऑप्शन चॉइस देना पड़ेगा। इसको ऑप्शन चॉइस जब आप देंगे ना, तो उसका पसंद गेम करेंगे। उसके बाद जो पसंद नहीं किया, धीरे धीरे उसको भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। देखिए इसका इम्प्रूवमेंट बहुत फर्क पड़ेंगे। कॉग्निटिव स्किल, इसका कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, बहुत बेनिफिट्स होता है। देखिए स्पोर्ट्स के माध्यम से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, ऑटिज्म विथ एडीएचडी বা অটিজম बच्चे के साथ बहुत सारा हाइपर एक्टिविटी है, अटेंशन वेरी पुअर है, इनका बहुत सारा बिहेवियर इशू है। तो एक गेम में मिनिमम जो कंसंट्रेशन होता है, इनका नहीं है। जैसे हम बोल रहे हैं, उसको हर टाइम एक जगह से अरेक जगह भागते हैं, 1 मिनट 2 मिनट ब्रेन वेट, चलो उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इस ऐसे हाइपर एक्टिविटी ज्यादा जो ऑटिज्म बच्चा है, जिसके साथ ज्यादा हाइपर एक्टिविटी है, उनको आप लोग साइकिलिंग, उनको आप लोग स्विमिंग, उनको आप लोग स्केटिंग, जो ये तीनों गेम है, इस तीन गेम के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, इसका इज कंसंट्रेशन, इसका और बढ़ेगा, हाइपर एक्टिविटी धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो एक बार कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, धीरे 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 वो अलग जो गेम है, उस गेम में इंट्रोड्यूस करना है। आप शुरू में ही इसको एथलेटिक्स देंगे, जो हाइपर एक्टिव बच्चा, धीरे 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 और उसका हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकते हैं। तो पहले उसको एक शेपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको जो मेन मोटो है, आप जो जो स्किल उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो आप लोग सिखा सकते हैं। चेंज, Please change the slide. ए वीडियो, चेंज द स्लाइड प्लीज। राहुल जी प्लीज चेंज द स्लाइड। यहाँ पे एक वीडियो है, एक फुटबॉल मैच हो रहा है। यहाँ पे जितना सारा एथलीट है, ऑल आर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड सिवियरिटी Please run the video. Please run the video. एंड सिवियरिटी, सिवियर टू माइल्ड, माइल्ड टू सिवियर। आप लोग देखिए, इनको एक दिन में ये सीखा नहीं जा रहा है, बहुत दिन प्रैक्टिस किया, 2 3 3 साल 4 साल ये सीखा है। आप लोग एक बार देख सकते हैं बच्चा से। Please run the video. Rahul ji. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्ले एक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है। इनका मोटर स्किल, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, इंक्लूसिव एंड एंगेजिंग गेम्स, प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन एंड एंजॉयमेंट, डेवलपमेंट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल वेलबींग। इस फुटबॉल से माध्यम से हम इस स्किल के ऊपर काम किया है। वीडियो, राहुल जी, Not running the video. Where is the how to run the फुटबॉल this मैच, video? How to run all are this all are video? origin system, yes, yes. They learn some rules and regulation, how to play football, toss. राहुल जी, It's not running the video. Next slide. Escape. Please escape this slide. सर Yes. वीडियो नहीं चल रहा है ना? No, नहीं चल रहा है। तो जल्दी जल्दी करना है, and there are other slides also I have to ठीक है present. सर। कुछ बिहेवियर सपोर्ट इन स्पोर्ट्स, बिहेवियर सपोर्ट इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम लोग जो बच्चा है, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम बिहेवियर है। तो हमको शुरू में ही इनका इस बिहेवियर को कैसे मॉडिफिकेशन करना है, कैसे इसको सपोर्ट देना है, इन पॉजिटिव बिहेवियर जब इसको बढ़ेगा और ज्यादा इन्वॉल्व होगा स्पोर्ट्स में। encourage participation, prevent problem behavior, reinforcement positive behavior and improve learning। यही हमारा मेन गोल है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट के लिए। हम लोग जब काम करेंगे स्पेक्ट्रम एथलीट, स्पोर्ट्समैन बा हमारा प्लेयर के साथ, चिल्ड्रन और एडल्ट जो हो स्पेक्ट्रम का, उनके साथ
हम लोग शुरू में ही एवरी इंडिविजुअल जो गेम है, गेम के एनकरेज करना पड़ेगा। जितना वो लोग सीख सकते हैं सीखेंगे, बट एवरी गेम में उसको पार्टिसिपेशन करने का मौका देना चाहिएगा, एनकरेज करना चाहिएगा। नहीं तुम्हारा द्वारा तुम नहीं कर पाओगे, ये गेम तुम नहीं कर पाते हो, ये गेम नहीं करना है, ऐसे नहीं है। एवरी गेम के इंट्रोड्यूस करना है उसके साथ, और एनकरेज करना है उस गेम में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इनका जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसका धीरे 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 बिहेवियर मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। और जब ये अच्छा से पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे, उसके संग संग इसको एक रीइंफोर्समेंट बा रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। इस रीइंफोर्समेंट बा रीइंफोर्समेंट जब इसको मिलेंगे और इसको इम्प्रूव स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के, और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इसका लर्निंग और इम्प्रूव होगा। यही है हमारा बिहेवियर सपोर्ट इन स्पोर्ट। तो कोच जहाँ यहाँ पे है, आप लोग बच्चों को इन्वॉल्व, बच्चों को पार्टिसिपेशन करने का मौका दीजिएगा सब गेम Next में, slide, next उसका slide, एनकरेज। next slide. नेक्स्ट स्लाइड। बिहेवियर सपोर्ट स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, टोकन रिवॉर्ड हम लोग दे सकते हैं, फास्ट विन स्ट्रेटेजी, विजुअल शेड्यूल और चॉइस मेकिंग एंड ब्रेक। हम लोग पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट लाइक अच्छा करेंगे तो उसको पॉजिटिव बिहेवियर, गुड, वेरी गुड। टोकन रिवॉर्ड, वो अच्छा करेंगे उसको एवरी वीक में तुम अच्छा खेलोगे तो तुमको एक टोकन देना पड़ेगा, तुमको एक स्कूटी राइडिंग, एक बाइक राइडिंग कर सकते हैं। फास्ट विन स्ट्रेटेजी, फास्ट कंप्लीट द टास्क देन यू कैन डू सो दैट, तुम पहले अच्छे से गेम कर लो उसके बाद तुमको एक चीज देंगे। विजुअल शेड्यूल, जो काम आप कर रहे हैं उसका विजुअल शेड्यूल पहले बना लीजिए, विजुअल टाइमर्स बना लीजिए, उसके हिसाब से उसको काम सिखाएंगे। उसको चॉइस दीजिए, शुरू में ही बहुत सारा गेम एक साथ Rahul नहीं। ji, Ashish ji, this is ABC. Please explain. एबीसी, Yeah, antecedent behavior. एबीसी एक अप्रोच है, एक पॉपुलर अप्रोच इन इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक में। एबीसी बिहेवियर मॉडल, जो हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनके साथ जब काम करेंगे, कोई बिहेवियर का कुछ एंटीसीडेंट होता है। ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस। लाइक एक बच्चा बार बार बैडमिंटन खेलते खेलते बैडमिंटन रैकेट को ग्राउंड में फेंक दे रहा है, आपका बात सुन नहीं रहा है, बार बार वहां से भाग जा रहे हैं। तो आपको शुरू में देखना पड़ेगा कि ये बच्चा, उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे कर रहा है। उसका बैडमिंटन रैकेट ज्यादा वेट है, बैडमिंटन रैकेट में कुछ प्रॉब्लम है जिसमें वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप शुरू में इस प्रॉब्लम बिहेवियर को, और कोई बिहेवियर तब प्रॉब्लम बिहेवियर होता है उस बिहेवियर जो सीक्वेंस है वो ज्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उसका इस बिहेवियर के माध्यम से उसका खुद का प्रॉब्लम होगा, और उसके साथ उसका जो पीयर्स एथलीट है उनका प्रॉब्लम होगा, और ये हार्मफुल होगा। तब एक बिहेवियर एक प्रॉब्लम बिहेवियर होता है। अब जैसे हम क्या बोल रहे हैं, बार बार एक बच्चा को धक्का दे रहा है, उसका पीयर एथलीट को धक्का दे के फेंक दे रहा है, उसका मार रहे हैं, एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार कर रहा है, एक 45 मिनट सेशन में एक बच्चा, एक स्पेक्ट्रम बच्चा और उसका पीयर को ऐसे ही 10 to 12 बार करेंगे, तो आप इसको समझना पड़ेगा ये एक प्रॉब्लम बिहेवियर है। तो आपको काम करने के पहले, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करने के पहले उसका कुछ बिहेवियर के साथ भी काम करना पड़ेगा। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, उसका करने का सोर्स क्यों है, ट्रिगर क्या है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। व्हाट हैपेंड बिफोर, इस एक्टिविटी, इस बिहेवियर को करने के पहले क्या हुआ है, ये इसके ऐसे घर से इसको पकड़ के लेके आया खेलने के लिए, उसका मन नहीं कर रहा है, बहुत धूप है, बस जहाँ पे हम लोग गेम करा रहे हैं वो एरिया अच्छा नहीं है, सरफेस अच्छा नहीं है, तो इसलिए बच्चा पेरेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा था, आके उसका पीयर जो छोटा है पेरेंट्स के ऊपर तो गुस्सा नहीं दिखा रहा है, इसलिए वो आके छोटा जो उसका पेयर उसके ऊपर धक्का देकर फेंक दिया है। तो उसका प्रॉब्लम क्या था, वो उसका पुश कर दिया है, पुश उसका प्रॉब्लम बिहेवियर है। क्यों किया, एंटीसीडेंट तो हम बोलेंगे, एंटीसीडेंट क्यों, घर में उसका पापा मम्मी फोर्सफुली उसको स्पोर्ट्स क्लास में लेके आए, उसका उस टाइम स्पोर्ट्स क्लास पसंद नहीं हुआ, ये जो टाइम में हम लोग उसको स्पोर्ट्स स्किल सिखाएंगे वो टाइम भी उसके लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए गुस्सा होकर उसको पीएस को धक्का दे दिया। तो ऐसे ही जब धक्का देंगे, एक पीएस जब गिर जाएगा, उसका चोट लग जाएगा, उसका भी प्रॉब्लम होगा। पेरेंट्स ऐसा बच्चा को इन ग्रुप के साथ खेलने नहीं देंगे, तब उसको सेग्रीगेशन कर देंगे, वो खेल नहीं पाएंगे, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो इस प्रॉब्लम होगा उसका इस बिहेवियर हिसाब से। इस Rahul ji, एबीसी please sum up.
There are other slides also I have to present. Please sum up the. हो गया सर आप सम अप कीजिए, सम अप कीजिए, सम अप. ठीक है सर, ओके ओके ओके। तो कोचेस, आप लोग यहाँ पे बहुत सारा जो हमारा पीपीटी का स्लाइड है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग We'll सिखाएंगे say बच्चों को। we'll share your PPT in the group. ओके 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 ओके, थैंक यू We सर। wanted to most on the classification that has not yet covered. So अवतार सिंह साहब बीच में थोड़ा सा हम ये करके और फिर हम उसको डालेंगे, और राहुल जी प्लीज शेयर द पीपीटी व्हाट वी हैव मेड इट. So we'll speak little the classification also. I will tell you that we were myself and then the DG Chaudhary and the Avtar Singh Sahab. We were the pioneer to establish the Indian Sports Federation of Autism. So there were one AGM held at Gujarat Gandhi in that Gandhinagar, and we were there. So Avtar Singh Sahab. All right. Thank you for the presentation, Ashish ji. I have a very small question to ask. Suppose, as we see in intellectually challenged children, I mean, their IQ is set by the doctors. Suppose it is 70 or 71 or 65. It cannot be improved. That's what we understand. Is there any provision of improving a mild or autistic child to uh, uh, I mean, can it be improved? Yeah, there is a classification of mild, moderate, severe, profound in the AB and the Indian scale of assessment of autism. So there is a changes once we reduce the behavior, we control the behavior, it changes, sir. Yeah, because the intelligence level generally is normal. Once the IQ is the below 70 and having the means the autism spectrum disorder, there is a multiple disability, then there is a problem. But once the IQ is normal and the child has the autism spectrum disorder, that it changes time to time, because infantile autism and adult autism, because the spectrum means the one child's the behavior, then the communication and social is not matches with others. It's called the spectrum. So means every यस child, सभी बच्चे का एक बच्चे को दूसरे बच्चों को आप मिला नहीं सकते हो कि यही बच्चा है और इसी तरह का दूसरा बच्चा भी बिहेव करेगा. दिस इज a spectrum. यस यस सर। Okay, so ओके we'll do one thing. Classification will stress on that because this attached with my heart. So Rahul ji, can you just show the some slides? So I will sum up within the 5 minutes. आशीष जी थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा मैं आपका ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है सर। एक्चुअली हम पूरा ऑटिज्म बारे में कोचेस को जानना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसी स्लाइड बनाए हैं। और कोई तो बात नहीं, मैं टाइम टाइम देयर इज a लिमिटेशन ऑफ टाइम ना, कोई दिक्कत नहीं. राहुल जी वो जो शुरू में स्लाइड दिखाए थे दिखाइए, तो स्लाइड जल्दी जल्दी करेंगे या हमको बोलिए तो मैं भी शेयर कर सकता हूँ. या दिखा दिए? ओके 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 ओके, सो गुड. थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए राहुल जी, क्योंकि ऑलरेडी वेट 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 नॉट लाइक दैट. थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा 5 क्योंकि लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हम सो विल थोड़ा सा करेंगे. सो टुडे इज द सी. यस 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 यस. ओके, सो दैट I will tell you today, because we welcome all the resource person, coaches, physical education teachers, special educator, parents, volunteers who are today in the programs. We say today because at there our trainer
train the trainer programs, and we are delighted to have more than 150 participants connected through the Zoom sessions. So today, autism sports and autism not a barrier to success. With proper coaching and structured training, patiently and understanding, the athletes with autism can achieve the excellent as the state, national, and international. So let us about Indian Sports Federation of Autism, that already we have shown the video in the www.indiansportsfederation of autism, and we are on the process of getting affiliation with the government of India. But last 13th national championship of autism recently we held in the month of June, 5th to 7th June at the Ahmedabad. So already 12 session, the 13th session has been, we have conducted, and we are conducting all the sports. So we'll show you in the video. So all the sports, so if I can share some video. 1 minute, allow. Allow. Indian Sports Federation of Autism. So once you go to the website, I will share what happened. It's stopped sharing. Yeah, Rahul ji. Okay. Share. Okay. So इसके बाद will tell you classification. We want to stress on classification. Already the Ashish has just spoken about the positive behavior supports, and then ABC model he already have spoken, and then behavior triggers. That's what we have to see. The common triggers includes the loud noise, bright lights, crowded place, long waiting times, sudden routine changes, and difficult instructions, and the hunger or fatigue. So एक ही चीज को बार बार थकान जो है प्रोत्साहित करता. Positive reinforcement already we knew about that. Verbal praises, high five and stickers, medals, favorite activities, extra play time. This we can give you the clear pictures to increase their positive behavior. And we communication strategy should be use short sentence, give one instruction at a time, allow processing time, use visual cues, maintain calm voice, and avoid shouting. ये सब हमारा example. Run fast now. It's no. Rahul, ready. Run like this. So like another visual supports we have to present while giving the training: picture cards, visual schedules, color codings, then the cards, demonstrate videos like this way we can show. Yes, sir. This we'll share this PPT. So was what to do, what not to do. See what to do: smile, encourage, demonstrate, be patient, use positive language, appreciate a small success. So what we don't have to do: punish. Do not punish, do not compare, do not shout, do not rush, do not ignore feelings, do not force participations. जबरदस्ती नहीं करना चाहिए. And what safety during the sports, very necessary, we have to keep in mind, always check playing area, equipments, hydration, पानी उसको पीना चाहिए, weather, medical information, emergency contact and first aid ये हमेशा होना चाहिए, because safety rules है, safety before the performance is very urgent and necessary. What we have to, as a coach, demonstration activity, what we can do: participants work in the group. Okay, and each group demonstrate, we have to show greetings. The athlete, very good morning, good afternoon, like that, giving the instruction, managing the behavior, positive reinforce, already we have spoken, the game, transition and closing session. So, like we see the some question we have. हम लोगों ने बताया कि what new strategy did you
learn today, तो बाद में बात करेंगे, that motor skill development through sports, what is the benefit, like motor skill development, like participation, sports improving gross motor skills, fine motor skills, balance, coordination, likewise strength, endurance and body awareness, ये सब हमको बेनिफिट मिलता है. Then what in the social skill, we share, है ना, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बच्चे को आता है, बिकॉज एवरी गेम इज अ सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटी. एंड देन द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन under the Indian Sports Federation of Autism, what the athletics, swimming, badminton, cycling, skating, football, bocce, table tennis, basketball, unified sports and adapted physical activities. So, and then the classification. See, the classification we have to know. That's why I wanted to tell you that classification ensured what the fair competition. What objectives are there? Equal opportunity, fair competition, athlete safety, appropriate grouping. So functional assessment what includes communication कैसा है बच्चे का, social interaction कैसा है, motor skills, behavior and adaptive skills, ये हमको देखना है. So now please note down this ASD1, ASD2, ASD3, ASD4, ASD5, ASD6, ये हमारा क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण. So under ASD1 the high functioning autism, Asperger syndrome. आप लोग जानते हैं ऑटिज्म का जो हाई फंक्शनिंग है, दैट कम्स अंडर एस्पर्जर सिंड्रोम. ये मेल को, ज्यादातर मेल को होता है, फीमेल को ऑटिज्म कम होती है रेस्पेक्टिव टू मेल. तो हाई फंक्शनिंग जो ऑटिज्म होंगे वो ASD1 में आएंगे. ASD2 जो माइल्ड ऑटिज्म विथ वर्बल जो है, उसके पास कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है, दैट इज कम्स अंडर ASD2. देन ASD3 हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म विथ डिलेड स्पीच, बच्चे को बोल नहीं पा रहा है तो डिलेड स्पीच है, तो दैट्स कम्स ASD3. ASD4 है परवेसिव एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये आप लोग थोड़ा सा जानते हैं ऑटिज्म के बारे में, तो ये जो है ASD4 में आता है. ASD5 है क्लासिकल सिवियर ऑटिज्म जो होगा. ASD6 आएगा, रेट सिंड्रोम एक ऑटिज्म का पार्ट होता है, ASD6 में आएगा. ASD7 का जो है ब्रॉड ऑटिज्म जो है, फिनोटाइप्स जो होंगे ASD7 में आएंगे. और ASD8 ऑटिज्म विथ ADHD, ये क्लासिफिकेशंस है ऑटिज्म का, जिस पर हम लोग गेम कराते हैं. तो एंड असेसमेंट एरिया क्या होना चाहिए जब हम उसको करते हैं स्पोर्ट्स फंक्शन क्लासिफिकेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन एंड मिनिमम सपोर्ट्स, mobility, like we have given that level B, level 1, level C. So C level, in the level 1, so what we have to see: mobility, communication skills, social interaction, cognitive behavior regulation, physical fitness, sports specific skills and competitive levels. Level A, competitive level A, what is independent, अपने से काम कर सकता है, कहीं competitive है, so it comes under A. अंडर B, व्हाट्स सेमी असिस्टेड, उसको थोड़ा सा मदद किया जाता है, गाइडेड पार्टिसिपेशन, उसको खेलने में थोड़ा गाइड किया जाता है. एंड मॉडरेट सपोर्ट, उसको चलो थोड़ा बॉल पकड़ो, थोड़ा आगे करो, पीछे दौड़े, तो ये सब लेवल बी है. एंड लेवल सी फुल्ली असिस्टेड, अडेप्टेड इक्विपमेंट्स को, व्हील चेयर सपोर्ट्स, मैक्सिमम असिस्टेंट, ये लेवल सी में आता है. सो देर आर टू टाइप्स. व्हाट वी हैव डन ऑन द देयर disability, it comes under classification. And another is a functional assessment, where the what is the actual level during performance. So it comes at level 1, level B and level C. So ये सब तो जानते ही हैं, प्रैक्टिकल कोचिंग, व्यवहारिक ऑलरेडी ये सब थोड़ा सा बताया गया है. थोड़ा सा हम, and recently today, yesterday picture I will show, this person अमन कुमार got awarded in the, ये हमारा देख रहे होंगे, PM केंद्रीय विद्यालय का कल प्रोग्राम था, जहां ये बच्चे ने अभी मेडल जीता है. उसको पूरे इंक्लूसिव स्पोर्ट्स के माध्यम से उनको जो है सम्मानित किया गया, और पूरे यहाँ हमारे केंद्रीय विद्यालय कंकरबाग में. ये अब बच्चा जिनको मिल रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये बच्चे, समान बच्चों के बीच इन बच्चे को पुरस्कृत किया गया. सो दिस इज ए सक्सेस स्टोरी. तो ये हमारे इसके तरफ से था. तो ये दो हो गया, ये स्टॉप तो कर दिया, स्टिल इज शोइंग. राहुल जी,
ओके तो यस बिकॉज टाइम हो गया है थोड़ा 5 मिनट्स और वीडियो विल रन द वीडियो वी हैव मेड फॉर द आशीष जी एंड देन विल हैव द डिस्कशन। अवतार सिंह साहब 5 मिनट्स वीडियो चला देते हैं। Sure, Dr. Shivaji. It's a vast subject, or time in hand is very limited. So Yes, we wanted yes. to have elaborated Yes, we'll presentation, in the but video. Yes, in the video. Next time we have time, so we'll again elaborate. Yes. सर, डॉक्टर शिवाजी सर, 1 minute. Let us. आज विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। वो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD वाले एथलीटों को हम समावेशी स्पोर्ट्स कोचिंग के जरिए कैसे सशक्त बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म यानी ISFA के ट्रेन द ट्रेनर कम्युनिटी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स पर आधारित है। 23 जुलाई 2026 को हुए इस ऑनलाइन सेशन में वरिष्ठ विशेष शिक्षक श्री आशीष कुमार जाना जी ने ये मॉड्यूल 9 प्रस्तुत किया था। ये सेशन हमें बताता है कि एक बेहतरीन और सही मायनों में समावेशी कोच कैसे बना जाए। आज हम जिन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे वो है खेलों में ऑटिज्म को समझना, एथलीटों की क्षमताएं और उनके व्यवहार से जुड़ी चुनौतियां, सकारात्मक व्यवहार समर्थन की रणनीतियां, संरक्षित शिक्षण और संचार, और अंत में समावेशी मूल्यांकन और वर्गीकरण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, खेलों में ऑटिज्म को समझना। देखिए, यहाँ हमारा नजरिया कमियों को देखने का नहीं बल्कि एथलीट की क्षमता और खेल में उसकी असीम संभावनाओं को पहचानने का है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD है क्या। देखिए, ये कोई बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये बस एक न्यूरोविकासात्मक स्थिति है। आसान शब्दों में कहें तो ये स्थिति किसी इंसान के बात करने के तरीके, लोगों से मिलने जुलने और संवेदी चीजों यानी सेंसरी प्रोसेसिंग को महसूस करने के तरीके को प्रभावित करती है। और सबसे बड़ी बात, ऑटिज्म से जुड़ा हर इंसान अपने आप में बिल्कुल अनूठा होता है। हर एथलीट की अपनी एक अलग पहचान होती है और यही अनूठापन ISFA के इस कमाल के विजन की नींव है, ऑटिज्म वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि एक पूरी सोच है, एक ऐसे समाज को बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम जो इन अद्भुत खिलाड़ियों का न सिर्फ मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी पूरे दिल से सम्मान करे। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, क्षमताएं और व्यवहार संबंधी चुनौतियां। चलिए देखते हैं कि ऑटिज्म वाले एथलीट खेल के मैदान में कैसी कमाल की क्षमताएं लेकर आते हैं। अक्सर हम लोगों का ध्यान सिर्फ चुनौतियों पर ही अटक कर रह जाता है ना, लेकिन ऑटिज्म वाले एथलीटों के पास जो क्षमताएं होती हैं वो सच में असाधारण हैं। जैसे कि उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, विजुअल लर्निंग यानी देखकर सीखने की कला में वो माहिर होते हैं और उनका फोकस एकदम गजब का होता है। इसके अलावा नियमों का कड़ाई से पालन करना और उनका बेहद ईमानदार व्यवहार, ये सब एथलेटिक्स, तैराकी या स्केटिंग जैसे खेलों में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। और जरा सोचिए, जब ये खूबियां खेल के मैदान से जुड़ती हैं तो नतीजे कितने शानदार होते होंगे। खेलों से न सिर्फ उनकी शारीरिक फिटनेस बेहतर होती है बल्कि मोटर कोऑर्डिनेशन और आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ता है। पर सबसे अहम बात यह है कि खेल उन्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और आत्मनिर्भर बनना सिखाते हैं। तो ये महज खेलकूद नहीं है, ये जिंदगी जीने का हुनर सीखने का एक बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन हाँ, एक कोच होने के नाते हमें थोड़ा यथार्थवादी भी होना पड़ेगा। इन एथलीटों को कुछ वास्तविक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्टेडियम में भीड़ का शोर या अचानक बजने वाली सीटी की तेज आवाज उनके लिए काफी परेशान करने वाली हो सकती है। अपनी बारी का लंबा इंतजार करना या दिनचर्या में कोई अचानक से बदलाव आ जाना, ये सब उन्हें असहज कर सकता है। इन बातों को समझना एक कोच के लिए बेहद जरूरी है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को उनके हिसाब से ढाल सके। चलिए अब तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सकारात्मक व्यवहार समर्थन रणनीतियां। आखिर एक कोच किस तरह से अपने एथलीटों का सही मार्गदर्शन करके एक बेहतरीन और पॉजिटिव माहौल बना सकता है। किसी भी व्यवहार की जड़ तक पहुंचने के लिए ABC मॉडल एक बहुत ही शानदार और आसान टूल है। ये काम कैसे करता है? बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है। A यानी एंटीसीडेंट,
मतलब व्यवहार से ठीक पहले क्या हुआ था। बी यानी बिहेवियर, एथलीट ने असल में क्या किया। और सी यानी कॉन्सिक्वेंस, उसके बाद क्या हुआ। इस मॉडल का इस्तेमाल करके एक कोच बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के किसी भी व्यवहार के असली कारण को एकदम सटीक तरीके से समझ सकता है। अब इस एबीसी मॉडल के ए को लेते हैं, जिसे हम ट्रिगर भी कहते हैं। खेल के मैदान में या किसी इंडोर हॉल में कई सारे ट्रिगर हो सकते हैं। तेज आवाजें, चुभने वाली रोशनी, बहुत ज्यादा भीड़, अपनी बारी का इंतजार, मुश्किल निर्देश या यहाँ तक कि भूख और थकान भी एक बड़ा ट्रिगर बन सकते हैं। एक अच्छे कोच को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और इन छोटे छोटे ट्रिगर्स को पकड़ना आना चाहिए। तो एक बार जब आप समझ गए कि कोई एथलीट ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है समाधान, यानी सकारात्मक प्रोत्साहन, जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि गलती होने पर डांटने के बजाय सही काम करने पर तुरंत इनाम देना। ये इनाम एक छोटी सी शाबाशी हो सकती है, कोई स्टिकर या थोड़ा सा एक्स्ट्रा खेलने का समय। यकीन मानिए, ये तकनीक एथलीट का आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ाती है। और इसी से जुड़ा है कोचिंग का एक सबसे असरदार और सुनहरा नियम, सुधारने से ज्यादा प्रशंसा करें। बिल्कुल सही सुना आपने, बार बार टोकने के बजाय अच्छे काम की तारीफ करें। ये एक ऐसा नियम है जिसे हर कोच को गांठ बांध लेना चाहिए। आइए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, संरचित शिक्षण और संचार। पॉजिटिव माहौल तो हमने बना लिया, लेकिन अब ये जानना है कि ट्रेनिंग की जगह और बातचीत के तरीके को कैसे बेहतर बनाया जाए। देखिए, ऑटिज्म वाले एथलीट एक तयशुदा और अनुमानित रूटीन में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। TACCH सिद्धांतों पर आधारित एक स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स सेशन हमेशा एक ही क्रम में चलना चाहिए, जैसे सबसे पहले वार्म अप, फिर स्ट्रेचिंग, उसके बाद नई स्किल्स की प्रैक्टिस, फिर गेम और आखिर में कूल डाउन। जब एथलीट को पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उनकी घबराहट अपने आप कम हो जाती है और वो बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। सिर्फ रूटीन ही नहीं, हमारा बातचीत का तरीका भी बहुत मायने रखता है। निर्देश देते समय हमेशा आवाज शांत और स्पष्ट होनी चाहिए। लंबे चौड़े भाषण या दूर से चिल्लाने के बजाय छोटे छोटे वाक्य बोलें। एक बार में सिर्फ एक ही निर्देश दें और सबसे जरूरी बात, उन्हें वो बात समझने का पूरा समय दें। हो सके तो विजुअल चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, समावेशी मूल्यांकन और वर्गीकरण। मैदान पर ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन प्रतियोगिताओं में निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित हो? ISFA ने इसके लिए एक बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया है। निष्पक्ष प्रतियोगिताओं के लिए ISFA इस ऑटिज्म प्रोफाइल वर्गीकरण तालिका यानी क्लासिफिकेशन टेबल का इस्तेमाल करता है। हमने शुरू में कहा था ना कि हर एथलीट अलग होता है। ये टेबल उसी विविधता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ASD-1 यानी हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म से लेकर ASD-8 तक ये पूरी प्रणाली कोचों को ये समझने में मदद करती है कि किस एथलीट को खेल के दौरान किस स्तर के सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। ये वर्गीकरण कोई मेडिकल डायग्नोसिस या डॉक्टरी पर्चा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक फंक्शनल असेसमेंट है। इसका इकलौता मकसद ये देखना है कि एथलीट की मोटर स्किल्स और कम्युनिकेशन कैसा है, ताकि उन्हें समान क्षमता वाले खिलाड़ियों के साथ रखा जा सके और खेल पूरी तरह से फेयर, सुरक्षित और मजेदार हो। इस पूरी चर्चा का निचोड़ ISFA के इस बेहतरीन कोचिंग सिद्धांत में छिपा है। क्षमता को विकसित करें, गतिविधि को अनुकूलित करें और प्रत्येक उपलब्धि का सम्मान करें। मुझे लगता है कि ऑटिज्म स्पोर्ट्स के लिए इससे ज्यादा सशक्त और सम्मानजनक नजरिया हो ही नहीं सकता। और आज के इस विश्लेषण को हम इस बेहद शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। समावेशन या इंक्लूजन का अर्थ एथलीट को बदलना नहीं है, बल्कि प्रत्येक एथलीट का समर्थन करने के लिए वातावरण को बदलना है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम सच में अपने आसपास के माहौल को इतना बेहतर बना रहे हैं कि हर कोई अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देन हम आज के सेशन को चेयर कर रहे हैं अवतार सिंह साहब से। चाहेंगे कि वो ब्रीफ करें और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मॉडरेट करें अवतार सिंह साहब। डॉक्टर शिवाजी, बहुत स्पेशली लास्ट के जो स्लाइड्स थे, those were very useful, or one should if one can comply this, the autism can be improved to great level। और ये सारी चीजें हम लोग के सामने होती हैं। कई
at times we don't understand what's happening to them, why they are behaving like that. But the slides were very useful, and thanks for the nice presentation of Mr. Ashish as well. I hope many coaches who are attending will benefit from this. Thank you. Thank you. Any question from any side? Anyone? Any सर suggestion? देयर इज वन क्वेश्चन सर Yeah. सर ASD4 और ASD8 में जो टेक्निकल शॉर्ट एब्रिवेटेड वर्ड्स लिखे हैं सर उसका मतलब समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप में हम डाल देंगे आपको, ग्रुप वाले में अभी। हाँ, और बताइए उसका। आप वेबसाइट पे जाइए, गो थ्रू द वेबसाइट इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म, ऑल द क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन। ओके ओके फाइन जी okay, सर, थैंक and यू you सर। can WhatsApp me, I will explain all the classification things also. ओके Anyone? शिवाजी सर, Yeah. सर अभी जो है एक हम लोग के यहाँ एक इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए ICD-11। पहले 10 था, अब ICD-11 2022 में आ गई है। उसमें बेसिकली सर ASD को दो भाग में, ब्रॉडली दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। तो सर हम ये मतलब ये हमारा सोच है, पता नहीं कि जो चीज चूंकि अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो बच्चे जो है अपना स्किल्स जल्दी डेवलप कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए कि अभी के समय में जो आप 8 कैटेगरीज बांटे हैं, तो अभी वो थोड़ा सा कम किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 8 कैटेगरी को अभी हम रिसेंटली वी हैव conducted the 13th national, so we made five. So what we have done, sometime we need in the classification like swimming and other where there is need of like ADHD, attention deficit hyper disorder, and Asperger syndrome. So we have to sometime, so at least we can we under 5 ASD1 to ASD5 most of the athlete could be classified. So there is a two type of classification. See, on the base of disability and also functional, A, B, C. You might have seen on the function. It comes under independent or partially supported or fully adapted sports. So based on two process, we conduct the events. So only not a classification. That is, one is the ability, another is the on the base of the disability. So दोनों के आधार पर divisioning means the classification and divisioning, then we conduct the event. So this is two part. ये बड़ा सा लंबा चौड़ा है। Again we'll tell the, जब हम ऑटिज्म के प्रोग्राम करते हैं तो क्लासिफिकेशन विद डिवीजन लाइक स्पेशल ओलंपिक्स रूल्स एज वेल द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन, दोनों को मिला के तब हम उसको इवेंट कराते हैं। रिसेंटली अभी तक जितने बार कराए हैं तो दोनों के, खाली आप क्लासिफिकेशन के आधार पर नहीं करा सकते, उसका क्लासिफिकेशन आपने डिसेबिलिटी के आधार पर कर दिया, लेकिन वो उसके जो फंक्शनल जो असेसमेंट है, जो डिवीजन है दो बच्चे को कराने के बाद, वो दोनों मिक्स करना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, हम आप लोग को बाद में इसमें जब करने लगेगा तो बताएंगे। समझ गए? और मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, ICD-10 2013 का था एंड ICD-11 2022 में आया है। गॉट द पॉइंट? हाँ। सो बट उसमें ICD-10 और ICD-11 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जो उसका असेसमेंट का डायग्नोसिस क्राइटेरिया है। बेसिक डिफरेंस है सर कि जो ICD-10 था वो फिजिकल मोड में मिल जाता था, अब ICD-11 जो है टेक्नोलॉजी मोड में, मतलब सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी उसका नहीं आया है सर। बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। अभी जो असेसमेंट का प्रोसेस है ना, वो टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया गया है ICD-11 में। ओके, तो ये तो बाकी लोग अब बता दें आप लोगों को कि DSM-5 डायग्नोस्टिकल एंड स्टैटिकल मैनुअल, पहले 4 था, 5 में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को एज ए डिसेबिलिटी माना गया। तो हमारा जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन डिजीज, वो उसको बोलते हैं ICD। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं तो ICD-1, 2, 3, 4, 5 2013 में ICD-10 हुआ था, 2022 में ICD-11 हुआ। इसी तरह DSM-5 तक अभी हुआ, DSM-6 अभी तक आया नहीं है। तो ये सब नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है, मैं आपको इस सब वर्ड बोलकर
मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट में नहीं डालना चाहता हूँ, कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन निशान जी आपने अपडेट किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इस पर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग। सो गेट रेडी एंड टुमारो विल हैव द ऑटिज्म सॉरी सेरेब्रल पाल्सी का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। दिस इज द फाउंडेशन कोर्स। थोड़ा थोड़ा हर डिसेबिलिटी के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? और आशीष जी को धन्यवाद देंगे, अवतार सर साहब को धन्यवाद देंगे, एंड वी थैंक आवर द फॉरेन डेलीगेट्स, द कोचेज हु अटेंडेड टुडे। तो सभी को ढेर सारी शुभकामना, शुभ रात्रि, क्योंकि टाइम हो चुके हैं। सो थोड़ा सा हम